हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया तमिल्स। देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। और Jaffna is a province to Sri Lanka has a larger concentration of Tamil population. The problem became a serious when the Tamilians began to demanding a national homeland of the Ilama in the northern Sri Lanka. It is important to understand that is actually two categories of Tamilians in Sri Lanka. There is called Tamil. Was the forefathers there is a migrate to the Sri Lanka is a country ago. They are estimated to be 1 million. The second category is the Indian Tamil, who is the fourth father. There is the taken by the Britisher as a plantation worker in 19th century. There are another is a million, many of the without citizenship. There are problem the status is dominated earlier India and Sri Lanka relation. The conflict between the Ceylons and Tamil come later. The Sinha's fear of Tamil domination, which is the principal reason behind the ethics conflict. The difference between the two communities was exploited by British ruler in order to check the growing of Sinha's is a nationalism. The Tamil were is allowed to be entered their administration structure and gradually took a control of the trade and professions, scarce and economics is a resource and opportunities. Paul there a majority pressure from its urban people forced the government of Sri Lanka to pass series of steps to the reducing the importance of Tamil, Indian and Serenos. The representation of the Tamilians in a public service in 1948 was 30%, but by 1975 it's fallen to the were 5%. The signals were to the encourage the settle down to the Tamil dominated area in the large numbers. The citizenship the law 1948 and 1949 was deprived about of 10 lakh Indian Tamil a political right. The Tamil youth had lost faith in the non-violence organized to himself and to the liberation tiger. The aim of this tigers is a surrogate is the Tamil state of the Ilama. The issue of Tamilians as the policy of sport by the government cast and dark shadow on the Indo-Sri Lanka relation. India from a time to time complained against to the discriminatory policy of the Sano's government. The agreement of 1964 sought to solve the problem of stateless is a person, the Indian Tamil in Sri Lanka. About 3 lakh of these people were to be granted Sri Lankan citizenship and about 5,25,000 persons were to give a citizenship of India. And these people were given to 50-year time to shift to the India installment, and the later in 1974 in the fate of the rest 1,50,000 is a stateless person was decided. It was agreed to between the two countries that half of them were to be given a citizenship of Sri Lanka and the rest would be become Indian national. And thus the issue of a stateless person was thus sorted out peacefully between the two countries. A territory rupture across between India and Sri Lanka over to the ownership of 1 mile long and only 300 yards wide small is the island known as the Kachowatuis is 1968 in 1974 under the agreement signed between the two countries. India is accepted to Sri Lanka is the ownership of the island. The next topic is here Tamil separatism. There is the most important topic arrive. The ethnic problem between Tamil and Sinhas has a long history. It has seemed to the serious provision in the 1983 as the gulf between the communities are developed. Is a militancy is a separate list and organizations and there is a become active. Tamil United Liberation is a front is a TUFL demanded a separate homeland for Tamil in 1988. Tamil Ilama is a ran to the terror or was the is unassailed is against their against in Tamil in 1983. During 1983-86 about the 2 lakh Tamil were rendered to the homeless. Their world is a racial is a rarity in the history of the country is made thousands of Tamil refugees in India.
India is offered to the help to resolve to the crisis, but it was the interpreted or India interpretation in a Sri Lanka on behalf of the Tamil. When the situation became a grim and the India and Sri Lanka is signed an agreement in 1987, India offered to the military assistance under to the accord. India is here a peace-keeping force, means IPKF was sent to Sri Lanka to help the restore normalcy in their country. The development of the IPKF was also the extension of India as policy of reminded of Sri Lanka and outside to power that if there is an involvement as inside, there is no where to the have on anti-Indian orientation. The New Delhi would be not remind to mute or spectre. Through the Accord of 1987 was the triumph of India's democracy. It is provided to be a costed for India. And here India is a lost about the 1,200 soldiers and the cost rupees 2 crore day of IPKF in the height of the involvement. The worst part is that the Tamil is turning against IPOK of the fighting. The broke up between the two. Rajiv Gandhi is a orchestrist of Indian Sri Lanka caught for 1987 was assassinated in 1991 at the behest of LTTE. The Liberation Tiger of Tamil Lama is a leader of Belopillai Prakho Karan. There is the most important here. Next topic, the area of mutual cooperation. A systematic effort at the strengthening as economic ties has been taken by the India and Sri Lanka since the 1990 centuries, especially after the withdrawal of Indian troops. In 1998, the two countries set up a Indo-Sri Lanka Foundation for increasing a bilateral exchange in the various fields, and they have agreed on a free trade area to facilitate a trade which has gone up greatly. India is encouraged to Sri Lanka to invite the peace process between the Tamil and the Sinhals. In 1998, Sri Lanka invited the Norway to the work out a peaceful solution to the ethnic problem. India stands for the unity of Sri Lanka. The greatest is a milestone of this process was the ICES of Fire Agreement of 2002 between the LTTE and the Sri Lanka, and the reverse of there is a dialogue is between the two. From India's long-term point of view, the Norway recognized India is a legitimate of interest in Sri Lanka and stated that it was no desire to come in the way of any Indian initiatives end of the confessed. भारतीय तमिलों की बहुत बड़ी समस्या है। कहते हैं ये अगला पॉइंट हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। भारतीय तमिलों की समस्या, देखिए श्रीलंका का जफाना राज्य बहुल्य तमिली जनसंख्या वाले क्षेत्र माना जा सकता है, और यह समस्या तब गंभीर हो गई जब तमिल लोगों ने उत्तरी श्रीलंका में अलग राष्ट्र इलम की मांग कर ली। यानी यहाँ पर भी पाकिस्तान के जैसा ही जो है यहाँ समस्या उत्पन्न हो गई। यहाँ पर यह समझना महत्वपूर्ण है कि श्रीलंका में तमिली के दो वर्ग हैं। एक सिलोन तमिली है जिसके पूर्वज सदियों पहले श्रीलंका के प्रवासी हो गए थे, और उनकी जो है अनुमानित संख्या लगभग 10 लाख के करीबन माना जाता है। और दूसरा वर्ग जो है भारतीय तमिल हैं, जिनके पूर्वज ब्रिटिशों द्वारा पौधे रोपण मजदूरी के रूप में 19वीं शताब्दी में श्रीलंका लाए गए थे। यानी देखा जाए तो पौधे रोपण के लिए जो तमिली थे उनको जो है अंग्रेजों ने जो है श्रीलंका में ले गए और वो वहीं पे जाके बस गए। तो ये दो समस्याएं के रूप में आज के समय जो है सर उठा रखा है। उनकी जनसंख्या भी 10 लाख के लगभग ही माना जा सकता है। इसमें से बहुत से वहाँ पर बिना नागरिकता के हैं और आज भी रह रहे हैं। उनकी स्थिति की समस्या ने भारत श्रीलंका संबंधों पर अपना प्रभाव दिखाया है। सिलोन तमिलों के साथ जो है संघर्षवाद में हमेशा अग्रसर रहा है, यानी हमेशा ही वहाँ पर संघर्ष होता ही रहा है तमिली और सियाई में। यहाँ पर अगर देखने वाली बात यही है कि सिन्हलियों में तमिल प्रभुता का डर है, जो कि जातीय संघर्ष का मुख्य कारण के रूप में देखा जाता है। दोनों समुदाय के बीच इस भेद का ब्रिटिश शासकों ने सिन्हलियों की बढ़ती राष्ट्रीयता कम करने में लिया था। तमिलों को प्रशासनिक ढांचे में प्रवेश की अनुमति दे दी गई थी और धीरे धीरे उन्हें व्यापार और व्यवसाय पर नियंत्रण कर लिया गया था। आर्थिक संसाधनों की कमी और अवसरों तथा अपने ही लोगों के बढ़ते दबाव के कारण श्रीलंका सरकार भारत और सिलोनों के तमिली की
महत्ता को कम करने के लिए कदम उठाने के लिए बाध्य हो गई। लोक सेवाओं में यहाँ जो है 1948 में 30% तमिली प्रतिनिधित्व थे। अब वो जो 1975 में गिरकर केवल 5% ही रह गए। अब इससे अंदाजा लगा सकते हो कि वहाँ तमिली की क्या दशा होगी। कहते सिनेरियो के तमिली प्रभुता के क्षेत्र में अधिक से अधिक संख्या में बसने को प्रोत्साहित किया गया है। और नागरिकों कानूनों ने 1948 और 1949 में लगभग 10 लाख भारतीय तमिलों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित करके रख दिया गया। और तमिली युवक जिनका अहिंसा से विश्वास उठ चुका था, उन्होंने स्वयं को ही लिबरेशन टाइगर्स के रूप में संगठित कर लिया। और इस टाइगर्स का लक्ष्य इलाम में संपूर्ण प्रभुता संपन्न तमिली राज्य का निर्माण करना था, जो कि बहुत बड़ी थी। कहते हैं जब देश आपस में लड़ने लग जाते हैं, घरेलू युद्ध होने लग जाते हैं, तो कई संगठन बन जाती है और यही संगठन जो है आगे चल के उनके देश पे ही राज करने लग जाते हैं। तमिली के मामले और सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों ने भारत श्रीलंका संबंधों पर काली छाई वाली छाप छोड़ गई। समय समय पर भारत ने सिलोन सरकार के विरोध में भेदभावपूर्ण नीति अपनाने की शिकायत भी की और 1964 में एक समझौता द्वारा राज्यहीन व्यक्तियों यानी भारतीय तमिलों की समस्या का हल ढूंढने की कोशिश भी की गई। लगभग 3 लाख लोगों की श्रीलंका की नागरिकता और 6,25,000 लोगों की भारतीय नागरिकता प्रदान की गई, जो कि बहुत बड़ी नागरिकता प्रदान करने वाला देशों में से माना गया। इन लोगों को किस्तों में भारत हस्तांतरण के लिए 15 वर्षों का समय दिया गया। बाद में 1974 में बचे हुए 1,50,000 लोगों की नियमित की निश्चित करना था। दोनों देशों के बीच यह सहमति हुई कि उनमें से आधे लोगों को श्रीलंका की नागरिकता और आधे लोगों को भारतीय नागरिकता दी जानी होगी। अंतर्राज्यहीन नागरिक विहीन लोगों का यह मामला दोनों देशों में शांतिपूर्ण तरीके से हल कर लिया गया, जो कि बहुत जरूरी भी थी। भारत और श्रीलंका के बीच जो है 1968 में केवल 1 मील लंबे और 30 गज चौड़े एक छोटे से द्वीप कछाटूपी के स्वामित्व का विवाद उठा और 1974 में दोनों देशों के बीच हुए एक समझौता के तहत भारत ने इस द्वीप पर श्रीलंका के स्वामित्व को स्वीकार भी कर लिया गया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अगला पॉइंट, तमिल पुथीकरण। देखिए तमिल पुथीकरण का क्या अर्थ होता है। कहते तमिलों और सिन्हलियों के बीच जातीय विवाद का एक लंबा इतिहास रहा है और 1983 में यह समस्या और भी गंभीर हो गई। इस समुदाय के बीच खाई के गहरा होने के बाद आतंकवादी और पूर्तिकारी संघर्ष सक्रिय हो गए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब घरों में आपस में विवाद होता है तो तीसरा बंदा जो है व्यक्ति जो है इसका फायदा उठा लेता है और यही हुआ। जब तमिलों और सिन्हलियों के बीच जब जाति विवाद होने लगी तो इसमें जो है आतंकवादी और पूर्तिकारी संगठन काफ़ी सक्रिय हो गए और इनका जो है अपना दबदबा यहाँ पर हो गया। तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने 1988 में तमिलों के लिए पृथक राष्ट्र तमिल इस्लाम की मांग भी की गई। 1983 में विद्रोह तमिल के विरुद्ध एक आतंकीय करने वाली गतिविधियां अपनाई गई और 1983 से 86 के दौरान लगभग 2 लाख तमिल बेघर से हो गए। इतिहास में सबसे बेहतर जातीय दंगे से हजारों तमिलों की भारत में शरणार्थी बना दिया गया। देखिए इसमें इतिहास भी एक गवाह है कि ऐसे जातीय दंगे शायद कभी हुए हों। भारत ने इस संकट के समाधान में अपनी जो है सहायता प्रस्तुत की, परंतु इसे तमिलों की ओर से भारत का श्रीलंका में भारतीय हस्तक्षेप माना गया, यानी अच्छे भलाई को उन्होंने गलत के रूप में देखा। जब स्थिति बहुत ही असामान्य हो गई तो 1987 में दोनों देशों ने एक समझौता किया और इसके अनुसार भारत ने सैन्य सहायता देने की पेशकश भी की। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका में शांति बहाली में मदद करने के लिए वहाँ भेजा गया और IPAF के यहाँ भेजकर भारत ने स्पष्ट कर दिया कि श्रीलंका और बाहरी ताकतों के सामने यदि इस क्षेत्र में कोई भारतीय विरोधी गतिविधियाँ की गई तो दिल्ली चुप नहीं बैठेगा। यद्यपि 1987 की संधि भारतीय कूटनीति की विजय थी, परंतु यह भारत के लिए बहुत ही महंगा साबित हुआ। भारत के लगभग 12,000 सैनिक मारे गए, जो कि बहुत बड़ी मरने वालों की संख्याओं में थी। इसका इस संघर्ष में शामिल होने से इसे प्रतिदिन 2 करोड़ रुपए व्यय करने पर भी गए थे और इसका बेहतर हिसाब यह था कि तमिली IPAF के विरोध हो गए और दोनों के बीच युद्ध छिड़ गए। 1987 की भारत श्रीलंका संधि के निर्माणकर्ता राजीव गांधी की जो है LTIT लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलाम के नेता विलुपिल्ले प्रभाकरन की ओर से 1991 में हत्या करवा दी गई। कहते हैं ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी और संकट का समय उत्पन्न कर दिया गया। ये श्रीलंका के साथ दोस्ती का परिणाम ही था। उसके पश्चात जो था अगला हमारा टॉपिक आया पारंपरिक सहयोग के क्षेत्र में श्रीलंका का क्या योगदान था और इसमें भारत ने क्या भूमिका अदा की। कहते हैं 1990 के बाद से ही भारतीय नौसेनाओं
को श्रीलंका से हटाए जाने के बाद से भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक संबंधों के जो है शक्तिशाली बनाने का प्रयास किए जा रहे हैं। 1998 में दोनों देशों में विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत श्रीलंका फाउंडेशन की स्थापना भी की गई और ये व्यापार को सरल बनाने के लिए एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में सहमत भी हो गए, जो ऊंचाई पर पहुंच भी गया। तमिल और सिन्हा के बीच जो है शांति प्रक्रिया के लिए श्रीलंका दोनों देशों को आमंत्रित करने को भारत ने प्रोत्साहित भी किया और 1998 में श्रीलंका ने भारतीय समस्या का शांतिपूर्ण जो है हल ढूंढने के लिए नोवो को आमंत्रित भी किया और भारतीय श्रीलंका की एकता चाहता था और इस प्रक्रिया का सबसे अहम पहलू यहाँ रहा कि श्रीलंका और LTID के बीच 2002 में जो है युद्ध विराम संधि हुई और इन दोनों के बीच वार्ताओं का सिलसिला आरंभ हुआ और नाबो ने माना और कहा कि पुण्य इस क्षेत्र में संघर्ष के अंत के लिए भारत द्वारा की गई किसी भी पहल के रास्ते में वो नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ी बात थी। कहते हैं श्रीलंका और भारत के संबंध उतार चढ़ाव की एक सीढ़ी थी, लेकिन कहते हैं बहुत से क्षेत्रों में भारत को बहुत ही नुकसान भी उठाना पड़ा, जो कि बहुत दुखदायक थी। कहते हैं 12,000 सैनिक के मारे जाना और राजीव गांधी की हत्या ये भारत के लिए बहुत ही विडंबना भरी समस्या उत्पन्न खड़ी कर दी। फिर भी कहते हैं अभी वर्तमान में देखा जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच काफ़ी अच्छा संबंध है और ये संबंध सदैव बने रहे, यही जो है ज़रूरी भी है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है और ये पॉलिटिकल साइंस का जो सिलसिला था वो भी ख़त्म हो जाता है। अब जो है हम करेंगे जो है ज्योग्राफी के चैप्टर, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप ज्योग्राफी के चैप्टर देखना मत भूलना। अगर आपने लिया है सिलेबस तो वो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। साथ में 2 बातें नहीं भूलना है। पहली बात ये कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुँचाने में त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। और दूसरी बात ये कि अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो इसको सब्सक्राइब करके चैनल को सेव करना भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तभी जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त होगा और आप वीडियो भी पूरे देख सकते हो।